مانسون میں سیلاب لائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جنگی بنیادوں پہ. یہ جنگ کی حکمت عملی ہے. یہ جنگ ایکچولی جو سمجھدار جو امریکہ کیا کرتا ہے, وہ جس ملک کو اس نے تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہو تو وہ اکانومی کو اس کی ڈاؤن کرتا ہے نا. پہلے اکانومی کو ڈاؤن کیا جائے کسی, تو یہ اکانومی کو بھی ڈاؤن کرتا ہے, پاپولیشن کو بھی ڈاؤن کرتا ہے. جو آبی ہے نا جنگ, یہ تو تمام اکانومی سے برتر جنگ ہے. یہ تو ہر پہلو کو ڈاؤن کرتی ہے. صحت کو, قوم کو ڈیمورلائز کرتی ہے, ہیلتھ کو قوم کی ختم کرتی ہے. دیکھو نا, ہم کالا باغ ڈیم کا آج تک اعلان نہیں کر سکے. ہم وہ جو ہے نا وہ ان کا کارگل کون سا جو بڑا ڈیم, کشن گنگا ڈیم جو ہے بنا رہے ہیں, یا کارگل ڈیم جو بن رہا ہے, کارگل ڈیم, وہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین, بات ہو رہی ہے بات کی آبی جارحیت کے اوپر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کا حل پوچھنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے کہ اب اس کا سولوشن کیا. پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ احساس نہیں پایا جا رہا, معاف کیجیے, نہ میڈیا میں, نہ سیاستدانوں میں, نہ ہمارے اکابرین میں, نہ انٹیلیجنسیا میں, کہ یہ محض قدرتی آفت نہیں ہے, اس میں آپ کے پڑوسی ملک کا بھی ہاتھ ہے. اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, اور اگر یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے تو پھر یہ سیلاب تو ہر سال آیا کرے گا, پھر قحط ہر سال آپ کے اوپر نازل ہوا کرے گا. ان حالات میں ہمارے پاس بقا کے لوازمات کیا ہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں. جی عظیم, ویلکم بیک. بارشیں معمول کے مطابق ہوئی یا معمول سے تھوڑا سا زیادہ ہوئی, لیکن سیلاب بہت زیادہ آیا, گھر برباد ہو گیا, لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی. مبصرین جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے تجزیہ نگار, وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بھارت نے پانی چھوڑا ہے, اور بھارت یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر سال آپ اس کی اسی طرح کے حسن سلوک کا نشانہ بنا کریں گے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا سفارتی امیج بہتر ہوا ہے بھارت سے پیسے لے کے, سفارتی امیج بہتر کرتے کرتے کیا ہم نے بے اہمیتی کی کوئی لائن تو نہیں کراس کر لی؟ کیا یہ ایک حکیمانہ اور صائب فیصلہ ہے بھارت سے اس مسئلے کے اوپر, اس معاملے میں اس سے مدد لینا, یا اس مدد واپس کرنی چاہیے تھی اور ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ جاری کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, آپ سے امداد نہیں لیں گے, تاکہ ایک میسج جاتا دنیا کو کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اب ذرا اس ایشو کی طرف آتے ہیں. حامد صاحب, امداد لینی چاہیے تھی, نہیں لینی چاہیے تھی, سفارتی میں واقعی بہتر ہوا ہے یا ہم نے ایک غلط میسج دیا؟ اس سے زیادہ بے شرم فیصلہ تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا امداد لینے کا. یعنی وہ دشمن جو اصلی ابدی دشمن ہے, $5 ملین, یعنی یہ تو پینٹس بھی نہیں ہے. یعنی انسان کو تو امریکہ بھی ہے نا, مجھ سے بھی لے رہے ہیں. دیکھیے, امریکہ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے بھی ہیں, ہم ان سے F-16 بھی لے رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ ہم کچھ لے رہے ہیں تو ہم کچھ دے بھی رہے ہیں ان کو. ان کی نیٹو کی سپلائی لائنز پاکستان کے تھرو جاتی ہیں, وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. اور ایک برابری کی سطح پہ بھی جب انہوں نے خود برپا کیا ہو. دیکھیے, اس میں ایک غیرت مند انسان کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ کس بات سے تمہاری بے عزتی ہوتی ہے, کس بات سے تمہاری غیرت میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ باتیں, یہ لیکچرز بے شرموں کو دیے جاتے ہیں. ان حکمرانوں نے ساری حدود پار کر لی ہیں شرم, حیا, عزت اور غیرت کی. بات ہم نے وہی کہی تھی کہ یہ پاکستان کا امبیسڈر جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, انسانوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا امبیسڈر ہے یا انڈیا کا امبیسڈر ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے کس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. پاکستان کا فارن منسٹر, جب پانی کی بات ہوئی, جب پانی کا ایشو کھڑا ہوا, تو ان کا سٹیٹمنٹ پہلے آیا تھا کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا, ہم اپنا پانی خود ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم خود ضائع کر رہے ہیں, پھر انڈیا سے آپ واٹر کے ایشو پہ نیگوشیٹ کیا کر رہے ہیں؟ پھر نیگوشیشنز کیا ہو رہی ہیں کہ آپ ڈیم کیوں بنا رہے ہیں اور پانی ہمارا کیوں روک رہے ہیں؟ ان کی اپنی کنٹرڈکشنز اتنی ظاہر ہیں. انڈیا ان ڈیمز کے اوپر $25 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہے. وہ کسی صورت میں بھی ان ڈیمز کو ختم نہیں کرے گا, وہ آخری سٹیجز میں. اب یعنی یہیں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ انڈس واٹر کمیشن کی. اسی لیے پھر جماعت علی شاہ صاحب کا نام بار بار آتا ہے بیچ میں, کہ جب 15 سال پہلے یہ ڈیم بننے شروع ہوئے تھے تو یہ کہاں یہ لوگ سو رہے تھے جا کے. یہ مجرمانہ غفلت, پورے میڈیا میں کہیں آپ کو انڈس واٹر کمیشن کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے, کہ جس کی ذمہ داری ہے یہ بتانا کہ کون سے ڈیم کس جگہ باقی ہیں, کتنے کیوسک پانی وہ چھوڑتے ہیں پاکستان میں, کس دریا پہ کتنے بنے ہوئے ہیں, اور کون سے غیر قانونی ہے. بیاس سے لے کر انڈس تک اس وقت کم از کم 100 سے زائد چھوٹے بڑے. علی صاحب اس کا ذمہ دار نہیں ہے حامد صاحب. کہیں بھی کسی حوالے سے بھی بھارت جس طرح آپ کی شرح کے اوپر بیٹھا پانی کے حوالے سے, اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں, پارلیمنٹ میں نہیں, میڈیا والوں نے نہیں کی, کسی نے بھی نہیں کی. دیکھیے, بات بالکل صحیح ہے, یہ مجرمانہ غفلت قوم کی اجتماعی غلطی ہے جس کا ہم اجتماعی کفارہ آپ دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. منسٹری آف ایگریکلچر ہے, منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے, انڈس واٹر کمیشن ہے, یہ براہ راست انوالو ہے اس کام میں. اب وہ احساس پایا جا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں, بالکل نہیں. غفلت ابھی اسی طرح ہی ہے.
पाकिस्तान की मीडिया पे आज जब ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मुझे मीडिया देख लीजिए चारों तरफ, कौन है जिस बात पे बात कर रहा है कि इंडिया ने पानी छोड़ा है? कौन है इस बात पे बात कर रहा है कि इंडियन डैम्स के साथ अब हम क्या करेंगे कि हर साल हमें इस तबाही का सामना करना पड़ेगा? कौन ये बात कर रहा है कि इस इशू को जंग के जरिए हल करना है या इसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जाना है? कोई बात कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई सियासतदानों में, कोई मीडिया में, कोई उलमा में, कोई दानिश्वरों में, कोई भी नहीं। इसका हल क्या है? हल इसका फिर वही है जो एक दफा मेरा ख्याल है कि वही हमारा हल तो जरा सख्त होता है इस मामले में। कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक दफा बागलियार डैम की टनल तोड़ दी थी जाके, और इंडिया को कई साल, डेढ़ साल, 2 साल सेटबैक हुआ था उस प्रोजेक्ट के ऊपर। हमें भी यही करना पड़ेगा। हाल की तरफ बाद में आते हैं। सरदार खान न्याजी साहब, ये मुजरिमाना गफलत क्यों हुई है? हर शोबे फिक्र से हुई, मीडिया से हुई, सहाफत से हुई, सियासत से हुई, पार्लियामेंट में किसी ने बात नहीं की। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जिन चीज़ों से वाबस्ता हो चुका है और जिन चीज़ों में हम पढ़ चुके हैं, नंबर 1 तो हम पार्टीबाजी में पढ़ चुके हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया को चस्का है। मसलन आप चीफ एडिटर हैं, आप एक अखबार निकाल रहे हैं बहुत बड़ा, सारा सफ़े अव्वल सियासतदानों के फरसूदा बयानात से भरा होता है, सारे कालम इनके बयानात से भरे होते हैं। संजीदा मौज़ूआत को तो आप लोग लिफ्ट ही नहीं कराते। सनसनीखेज़ी चाहिए हमें। शेख रशीद ने ये क्या दिया जवाब, जो निसार ने ये चाहिए। हमें अगर पसंद है नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ की फेवर में लिखेंगे, अगर पसंद है पीपल पार्टी तो पीपल पार्टी की फेवर में लिखेंगे। मैंने अर्ज किया ना कि नेशनल मुस्तकबिल हमारा तारीख इसलिए कि हम नेशनल काजेस को भूल चुके हैं और हमें अपने मुल्क को भूल चुके हैं। मैं तो ये कहूँगा अपने मुल्क को भूल चुके हैं कि हम किस तरह जा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा अमेरिका ने, उसके भी है, लेकिन वो हमें मदद दे के अपने मकासद अचीव करता है। हमारा ख़त्म होना भी उसका एक मकसद है कि हम एक रूली लंगड़ी कौम की है आपकी नजर में कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं। आवाज लीग से आती है, न पीपल पार्टी से आती है, न फौज से आती है, न जुडिशरी से आती है। अभी तो अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह ताला जुडिशरी में कोई हिम्मत पैदा कर दे। उस हिम्मत से पानी का मसला तो हल नहीं होगा। नहीं, पानी का मसला हल होगा, सारे मसाइल हल होंगे जब हिम्मत पैदा हो जाएगी, जब इस कौम ये सोचने लग जाएगी कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा सज्जन कौन है, और हमें हर साल इस अजाब से बचने के लिए एक तो टाइम बनाने चाहिए, दूसरा इस केस को किसी आलमी फोरम पे हमें ले जाना चाहिए कि इन्होंने तबाही बर्पा की है, और ये हर साल तबाही बर्पा करेंगे। जरूरत जब पानी छोड़ने की होगी पानी छोड़ेंगे, जब पानी बंद करने की जरूरत होगी बंद कर देंगे, और उनके रहमो करम पे आपने जीना होगा। अगर वो जो है ना, अगर आप ना जागे तो आगे इससे बुरे तो बहुत, इससे बुरे क्या हालात हो सकते हैं, जो इससे बुरे हो सकते हैं जी। आपकी खड़ी फसलें तबाह होगी। ज़ैद अहमद साहब, आइंदा शायद आपकी बुआई के मौसम में आपके ये पानी नहीं होगा, तो क्या हम ये 5-7 साल बाद मुकम्मल बड़ा रद्द करवा के सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, या अभी से हमें ऑप्शंस के ऊपर गौर करना होगा? और ऑप्शन पे गौर करना हो तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखिए, जैसे अर्ज किया, जैसे नाई साहब ने कहा कि हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक जिंदा और गैरतमंद कौम जब सामने होती है तो अपने ऑप्शंस खुद निकालती है। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उनमें कहते हैं, जिसका काम यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई वायलेशन होती है तो इसको रिपोर्ट की जाती है, वो ऑब्जर्व करते हैं और वो देखते हैं जाके। क्योंकि वो जंग नहीं रुकवा सकते, लेकिन कम से कम एक इंटरनेशनल बॉडी, रिपोर्टिंग और ऑब्जर्विंग बॉडी है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया के उन तमाम डैम्स के ऊपर, जब तक कि हम आर्बिट्रेशन में जाके इस मसले को रिजॉल्व नहीं करते, ऑब्जर्वेटर्स बिठा सकते हैं कि कब पानी छोड़ा जा रहा है या नहीं छोड़ा जा रहा। इस पर सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। हम इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी पाकिस्तान में आएगा और कितना नहीं आएगा। और जिस वक्त हमारी अगर पानी डैमों में मौजूद है और हमारी फसलों को जरूरत है और इंडिया पानी रोक रहा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हॉस्टाइल एक्ट तस्वर किया। लेकिन अगर आप 70% पानी जाया हो रहा है तो आप इसको कैसे एक्ट ऑफ वॉर कह सकते हैं? हम उस पानी को, आप अपना घर ठीक करें बजाय इसके कि दूसरे पे एतराज करें। जी, दोनों बातें। देखिए, हम अपने पानी को जो मर्जी करें, इंडिया को कोई हक नहीं है कि रोके। पहले आर्गुमेंट तो ये है, हम अपने पानी को पिए या समुद्र में फेंकें, जो मर्जी करें, ये इनका कोई इशू नहीं है। वो रोक नहीं सकते इंडर वाटर ट्रीटी के तहत उस पानी को। इवन वो ट्रीटी हमारे खिलाफ थी, उसमें भी हमने अपने 2 दरिया, मशरकी दरिया उनको दे दिए थे और एक छोटी सी कीमत ले ली थी। और अगर ये नहीं मानते हैं, अगर ये, क्योंकि ये नहीं मानेंगे, हमें मालूम है कि हिंदू बनिया कभी मान के नहीं देगा, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करने की बात भी कर सकते हैं कि ट्रीटी हम खत्म करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट दिस ट्रीटी। आपको जो 3 दरिया मिले हैं वो भी गए। उसके बाद फिर जो कुछ होगा, उसके बाद जो कुछ होगा ताकत के बल पे होगा। देखिए, बात यही है कि अगर दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती अ थ्रेट ऑफ वॉर, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो इस मौके के ऊपर उसका आज़ाद कर सकता है? हमें पूरी ताकत है, लेकिन बात सिर्फ ये कि हमें क़यादत गैरतमंद चाहिए, दलेर चाहिए। इस क़यादत के साथ मुमकिन नहीं है। क़यादत गैरतमंद कहां से आएगी? ये जो कुछ, ये सैलाब जो बहा है ना, ये सब फसलों को बहा के नहीं लेके गया, ये हुकूमत को भी बहा के ले जाएगा। वो मैं बताता हूँ, ये जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, वो नहीं होंगे तो मिलिट्री आ जाएगी। आज मीडिया ठीक हो जाए। अगर आप समझते हैं कि इंडिया के साथ इस तरह आपी जारियत होती है
तो क्या इंडिया के चैनल और इंडिया का मीडिया इस तरह खामोश होता? हमारे लाखों इंसान, लाखों मुसलमान दहशतगर्दी में, इंडियन कई वाक़यात में मुलविस होता है, लेकिन उनका एक वाक़या हुआ था, क्या उन्होंने हमें कितना डिफेंसिव। यही तो मुझे आपसे पूछना है, 80% लाइफ स्टाइल आपका तबाह हो गया, कोई भारत के बारे में बोल नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं, हम जरा अपना मुहासबा कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खामखा भारत को रगड़ा दे रहे हैं, हकीकत ये ना हो। कोई बोल नहीं रहा जाना साहब, 80% लाइफ स्टाइल आपका तबाह हो गया, फसलें आपकी तबाह हो गई, सब कुछ उजड़ गया आपका, और जहाँ से सैलाब आया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, वो पता है, लेकिन हम बेहिस हो चुके हैं। मीडिया अगर आज खड़ा हो जाए तो अच्छा लीडर भी आ सकता है, अगर मीडिया पार्टीबाजी से निकल जाए करना चाहते हैं। और अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क भी इसी तरह हमें लूड़ा लंगड़ा। ज़ैद अहमद साहब, क्या पे हमारा फिक्री दिवालिया भी निकल गया है? देखिए, इकबाल का एक शेर आपको बताते हैं, वो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार, ये आज़ादी सियासत और आज़ादी सहाफत के ऊपर जो बात होती है ना, इकबाल ने इसकी हदें मुतय्यन कर दी हैं। फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का है तरीका। बहुत मायूसी होती है इस बात के ऊपर कि हमारे मीडिया की सतह इतनी सुपरफिशियल है, इतनी सतही सोच है, फिक्र है। कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, कौमों के उरूज जवाल के असबाब, इस कौम को आगे कैसे लेके चलना है और जदीद दुनिया में पाकिस्तान का मकाम कैसे पैदा करना है, इस किस्म की तो कोई बात इस मीडिया में वजूद ही नहीं रखती। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त अमेरिकन ने $50 मिलियन डाले हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, ये भी फैक्ट है। पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी सहाफियों को खरीदने के लिए, हमारे चैनल को खरीदने के लिए। जब प्राइम टाइम के ऊपर मेन चैनल पे वॉइस ऑफ अमेरिका आ रहा हो तो आप मुझे बताइए, चैरिटी और चंदे में तो नहीं आ रहा है, कोई कीमत लगाई गई है डॉलर्स में इसकी, जो पाकिस्तानी मीडिया पे चलाया जा रहा है वो। द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने पैसों में कुछ आप तक भी पहुंचे जी? नहीं, हम छोटे लोग मीडिया आजाद होना और बात है, हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली आवारा हुआ है, आवारा हो गया। आजादी और आवारगी में यही फर्क है। आजादी हुदूद के साथ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है, आवारगी में इंसान मादर पितर आजाद होता है। तो आपकी मीडिया तो आवारा हो गया, वो जो हमारी क़यादतें हमारे ऊपर मुसल्लत रही, वो जो जमहूरी और वो जो गैर जमहूरी, उनकी आवारगी के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? वो इतने करप्ट, 10-10 साल लोग मुसल्लत रहे इस मुल्क के ऊपर, ड्रोन हमले करवाए, लोग बेच के अपनी किताबों में इतराफ किया कि मैंने लोग बेचे, लाल मस्जिद को लहू में नहला दिया। वो साहब ना उनको आइन रोक सका, ना उनको अखलाकियात रोक सकी, ना उन साहब को कानून रोक सका। वो सारी बना लेते ना, कोई डैम मीडिया तो चले आवारा हो गया। ये कौमों की इज्तिमाई गलती है, इसमें सियासतदान, उसमें हुक्मरान, इसमें मीडिया, इसमें उलमा, इसमें दानिश्वर सब शामिल है। और इसीलिए इज्तिमाई सजा काट रही है पूरी कौम अभी, किसी एक ग्रोह की वजह से नहीं है। और इज्तिमाई जब खून बहेगा, अल्लाह से डरे कि इराक जैसा हाल हमारा ना हो, जहां पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और पढ़े लिखे बच्चों को राइफल निकाल के अपनी इज्जत हिफाजत करने के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है इस वक्त। दुश्मनों का जो प्लान है इस वक्त, अब इराक के बाद अफगानिस्तान को उन्होंने बराबर करके रखा। न्याय साहब देखा है मुकम्मल मायूस है, आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? उम्मीद है, हम सिर्फ पर उम्मीद है, एक मायूसी नहीं है हमें। इस वजह से नहीं है कि अल्लाह के फजल से आपकी आदत है पूरी उम्मीद रहना, या आपको कुछ नजर आ रहा है इसका पूरी उम्मीद? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमें नजर आ रहा है। मैं एक दिफाई तज्जिया निगार भी हूं और साथ साथ एक रोमांटिक आइडियोलॉग भी। हम जब सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से बात करते हैं तो तब भी हम ग्राउंड रियलिटीज बात करते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस नहीं होता कि हवा में हम बात कर रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान मजबूत तरीन पोजीशन में है बहैसियत एक नेशन, एक कौम इस पूरे खित्ते में। अमेरिकन हम पे डिपेंड करते हैं, हम अमेरिकन पे डिपेंड नहीं करते। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, आप भी बता रहे हैं ना, नुकसान कैसे मजबूत तरीन? हमारी हालत तो ये है कि हर साल पानी छोड़ा करेगा और ये बात हम फिर कशकोल लेके गोल करेंगे, पैसे दो। ये पहले साल इसने वार हम पे किया है कि पिछले 10 साल की हिमाकतें जो हम करते आए हैं, ये डैम आज से नहीं, मुशर्रफ दौर के शुरू से बनना शुरू हुए थे। ये 10 साल की गलतियां जिसका कफारा अब देखा है आपने, लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है। इट कैन बी मैनेज्ड। हम इस वक्त अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। अफगानिस्तान भी हमारे खित्ते में मौजूद है और इंडिया भी इस वक्त, देखिए इंडिया की भी अपनी वीकनेसेस हैं। हमसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, हम दुनिया कैसे कंट्रोल करें? की वजह से इस नापाक क़यादत को तब्दील करना जरूरी है। तो ये नापाक तब्दील होगी रदाना साहब, तो कोई और नापाक आ जाएगी? जरूरी नहीं है, यही लोग आएंगे ना? जरूरी नहीं है। देखिए इकबाल की नून आई, नून गई, काफ आई। अब इलेक्शन, वो इलेक्शन में होंगे, अब इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन हमें नजर नहीं आते। आपको गैर जमहूरी तब्दीली नजर आ रही है? देखिए इस वक्त एक आपको गैर जमहूरी तब्दीली नजर आ रही है? एक कि जो खुदाई होगी, चाहे वो फौज के जरिए हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, या अवाम उन्नास इनको सड़कों, या इनको अवाम उन्नास सड़कों। मैं अर्ज कर रहा हूं आपको कि उस प्रोसेस में हम नहीं जा रहे हैं कि आप इस तब देखिए सड़क पे अगर अनारकी फैलती है, सड़क पे अगर अनारकी फैलती है, ये कई मरतबा हो चुका है कि पब्लिक अवाम उन्नास ने जाकर उस्मानों को नीचे मुझे खुदा लाया है। देखिए तो खुदाई तब्दीली की जरा वजाहत करेंगे? देखिए
जिस खुदाई तब्दीली की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हम ये बात कर रहे हैं कि मकाफात अमल होता है जो तब्दीली लेकर आता है। उसके प्रोसेस और स्ट्रेटजी को आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये नजर आ रहा होता है कि नविश्ते दीवार ये लिखा हुआ है कि ये तब्दीली आने वाली है, ये आने वाली है।